वाह 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 वाह। इसमें रोजा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है, इसमें रो क्या बात। Assalamu alaikum. Ramazan is the month that transforms the atmosphere of every city, but in Hyderabad, the nights of Ramazan feel especially magical. As soon as the sun sets and people break their fast, the streets slowly come alive with lights, food stalls, laughter, and the irresistible aroma of traditional dishes being cooked fresh in front of hungry visitors. Hyderabad has always been famous for its rich culinary heritage, and during Ramazan, this culture shines even brighter. From sizzling kebabs to the legendary Patthar Ka Gosht, every corner of the old city offers a taste of history mixed with flavor. Today, I am bringing you along with me on a special Ramazan food journey to a place that has been winning the hearts of food lovers, Easy Bites. रमज़ान ऐसा महीना है जो हर शहर का माहौल बदल देता है, लेकिन हैदराबाद में रमज़ान की रातों का जादू बिल्कुल अलग होता है। जैसे ही मगरिब के बाद लोग अपना रोज़ा खोलते हैं, धीरे धीरे गलियां रोशनियों, फूड स्टॉल्स और लोगों की खुशी से भर जाती है। हैदराबाद हमेशा से अपनी रिच फूड कल्चर के लिए मशहूर रहा है और रमज़ान के दौरान ये कल्चर और भी ज़्यादा चमकता है। सिजलिंग कबाब से लेकर मशहूर पत्थर का गोश्त तक, पुराने शहर की हर गली हिस्ट्री और फेवर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन पेश करती है। आज मैं आपको एक ख़ास रमज़ान फूड जर्नी पर लेकर आई हूँ, जहाँ हम विज़िट कर रहे हैं एक ऐसी जगह जो फूड लवर्स का दिल जीत रही है, ईज़ी बाइट्स। Kebabs themselves have a long and fascinating history that dates back hundreds of years. It is believed that kebabs were first introduced by soldiers and royal cooks during the time of Asian, Persian, and cultural Asian rulers. These warriors would cook pieces of meat over open flames using swords or iron rods. Over time, when these culinary traditions traveled to India during the Mughal era, the recipes evolved and became richer with spices and techniques. Hyderabad, being a city influenced by Royal Nizami culture, adapted these flavors beautifully. Today, kebabs are not just food here, they are a symbol of tradition, history, and passion for cooking. कबाब्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी और इंटरेस्टिंग है, जो कई सदियों पुरानी है। कहते हैं कि कबाब सबसे पहले पर्शियन और कल्चरल एशियन हुक्मरानों के दौर में सोल्जर्स और रॉयल कुक ने इंट्रोड्यूस किए थे। उस वक्त सिपाही गोश्त के टुकड़े को तलवारों या लोहे के रॉड्स पर लगाकर आग पर पकाते थे। वक्त के साथ जब ये रेसिपीज़ मुग़ल दौर में इंडिया पहुंची तो मसालों और कुकिंग टेक्निक्स के साथ और भी रिच हो गई। हैदराबाद जो निज़ामी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ शहर है, उसने इन फ्लेवर्स को बहुत खूबसूरती से अपनाया। आज कबाब सिर्फ का खाना नहीं, बल्कि ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कुकिंग के पैशन की निशानी है। Another iconic dish that belongs to the royal streets of Hyderabad is the famous Patthar Ka Gosht. This dish is said to have originated during the time of the Nizams, when royal chefs experimented with cooking meat on large heated stones. The idea was simple yet brilliant. A thick stone slab
would be heated over fire until it becomes extremely hot, and then marinated meat would be placed directly on it. The sizzling sound, the smoky aroma, and the rich spices would create a flavor that could not be achieved through normal cooking methods. Over time, this dish moved from royal kitchens to the streets of Hyderabad and became one of the most loved Ramazan specialities. हैदराबाद की एक और आइकॉनिक डिश है मशहूर पत्थर का गोश्त। कहते हैं कि ये डिश निज़ामों के दौर में पैदा हुई जब रॉयल शेफ्स ने गोश्त को गर्म पत्थर पर पकाने का एक्सपेरिमेंट किया। इसका तरीक़ा सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। एक मोटा पत्थर को आग पर इतना गर्म किया जाता था कि वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाए और फिर मैरिनेटेड गोश्त को सीधे उस पत्थर डाला जाता था। सिजलिंग की आवाज़, स्मोकी एरोमा और रिच मसालों का कॉम्बिनेशन ऐसा फ्लेवर पैदा करता है जो नॉर्मल कुकिंग से मुमकिन नहीं होता। वक्त के साथ ये डिश रॉयल किचन से निकलकर हैदराबाद के स्ट्रीट्स तक पहुंच गई और रमज़ान की सबसे पसंदीदा डिशों में से एक बन गई। टुडे my Ramazan food journey brought me to the Khilwat branch of Easy Bites, which became specially lively during the holy month. As soon as I arrived there, I could see the excitement of people gathering around the stall, waiting for freshly prepared kebabs and the sizzling patthar ka gosht. The aroma of spices filled the air and instantly made me feel hungry. What makes this place specially is not just the food but also the friendly energy of the team working here, making every visitor feel welcomed. आज मेरी रमज़ान फूड जर्नी मुझे इजी बाइट की खिलवत ब्रांच तक ले आई, जो ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा लाइवली हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची, मैंने देखा कि लोग स्टॉल के आसपास जमा होकर ताज़ा बनने वाले कबाब और सिजलिंग पत्थर का गोश्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी और फ़ौरन भूख का एहसास होने लगा। इस जगह को ख़ास बनाने वाली चीज़ सिर्फ खाना नहीं बल्कि यहाँ की टीम की एनर्जी है जो हर विजिटर्स को वेलकम फील कराती है। One of the most memorable moments of this visit was meeting the owner of Easy Bites here at Khilwat. Instead of simple tasting the dishes, we spent some time talking about their passion for cooking and the journey of building this food branch. We even decided to cook together for a while, preparing a little bit of kebabs and patthar ka gosht. Being part of the cooking process made the experience much more enjoyable and gave me a closer look at the effort and dedication that goes into every plate served here. इस विज़िट का सबसे यादगार लम्हा था इजी बाइट के ओनर से खिलवत ब्रांच पर मुलाकात। सिर्फ खाना टेस्ट करने के हमने थोड़ी देर उनके साथ बैठकर उनके कुकिंग पैशन और इस फूड ब्रांड के सफ़र के बारे में बात की। फिर हमने मिलकर थोड़ी देर कुकिंग भी की, जहां हमने कबाब्स और पत्थर का गोश्त बनाया। कुकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा एन्जॉयबल बना देता है और ये भी दिखाता है कि हर प्लेट के पीछे कितनी मेहनत और डेडिकेशन होती है। After enjoying the Khilwat branch experience, it is important to mention the Easy Bite has another branch located in Bahadurpura as well. This branch is also becoming popular among food lovers who want to enjoy authentic kebabs and delicious patthar ka gosht in the same signature style. Whether you visit the lively Ramazan setup in Khilwat or the branch at Bahadurpura, the focus remains the same: fresh ingredients, rich flavors, and the memorable street food experience. खिलवत ब्रांच का एक्सपीरियंस एंजॉय करने के बाद ये भी बताना ज़रूरी है कि इजी बाइट की एक और ब्रांच बहादुरपुरा में भी मौजूद है। ये ब्रांच भी फूड लवर्स के दरमियान काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जहां लोग ऑथेंटिक कबाब्स और लजीज पत्थर का गोश्त एंजॉय करने आते हैं। चाहे आप रमज़ान के लाइवली माहौल में खिलवत ब्रांच विज़िट करिए या बहादुरपुरा वाली ब्रांच पर जाइए, दोनों जगह एक ही चीज़ कॉमन है: फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, रिच फ्लेवर और एक यादगार स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस। मैंने इजी बाइट के लिए एक गज़ल लिखी है:
मैं आप लोगों को पेश करना चाह रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। In the heart of Ramazan, nights where the city lights glow, there's a place called Easy Bite where the true flavors flow. Kebabs sizzling gently, patthar ka gosht full of delight. Every bite tells a story in the calm Ramazan night. रमज़ान की रातों में जब शहर रोशनी से चमकता है, इजी बाइट का नाम हर फूड लवर्स के दिल में बस जाता है। कबाब्स की खुशबू और पत्थर का गोश्त का लाजवाब टेस्ट हर बाइट में महसूस होती है रमज़ान की एक नई ग्रेस। जब गरम पत्थर पर गोश्त की सरसराहट सुनाई देती है, मसालों की खुशबू हर महफिल को और भी रंगीन कर देती है। कबाब्स की लज्जत और दोस्तों की महफिल जब साथ हो जाए, रमज़ान की हर रात एक खूबसूरत याद बन जाए। रोशनियों से सजा पुराना शहर जब मुस्कुराता है, इजी बाइट का स्टॉल हर दिल को अपनी तरफ बुलाता है। हर बाइट में मेहनत, हर डिश में प्यार नज़र आता है। यहाँ आने वाला हर मेहमान खुशी लेकर जाता है। और जब तो क्या नाम है आप लोगों का? रहमान उमर। जोर से सारे रहमान उमर। उमर। और आप लोगों के? अरहान और अरहान और अयान। अयान और सुलेमान। तो ये पूरी टीम तरावी हुई नहीं हुई है? बोलो तरावी हो गई। और आप क्या खाने आएंगे? जल्दी जल्दी बोलो क्या खाने रहे हैं आप? क्या रोटी कबाब दबाने। क्या फिर से बोला जरा? रोटी कबाब दबाने हैं यहाँ पे। वाह 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 वाह, तो पूरे हैदराबादी स्टाइल। तो चलो अब क्या ले रहे, मैं आप लोगों को सारे लोगों को मैं पकाऊंगी, अब सर्व करूंगी। तुम लोग जल्दी जल्दी बोलना कौन सा ऑर्डर ले रहे। Seeing this amazing crowd, I also joined the cooking at Bahadurpura branch. I fried the famous pathar ka gosht myself as the marinated meat touched the hot stone. The sizzling sound and the aroma of spice filled the entire stall. ये ज़बरदस्त crowd देखकर मैंने भी कुकिंग ज्वाइन की बहादुरपुरा ब्रांच पर, और मैंने ख़ुद पत्थर का गोश्त फ्राई किया। जैसे ही मैरिनेटेड गोश्त गरम पत्थर पर रखा गया, तुरंत ही सिजलिंग आवाज़ और मसालों की खुशबू पूरे स्टॉल में फैली गई। आफ्टर दैट आई इवन ट्राइड मेकिंग फ्रेश रोटीज़ देयर। सर्विंग हॉट रोटीज़ विद फ्रेशली कुक्ड पत्थर का गोश्त फेल्ट लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एवरीवन अराउंड वॉज एन्जॉइंग द डिलीशियस फूड। उसके बाद मैंने वहाँ फ्रेश रोटियाँ भी बनाई। गर्मा गर्म रोटी को फ्रेश पत्थर के गोश्त के साथ सर्व करना बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, और आसपास के लोग भी इस लजीज खाने का मज़ा ले रहे थे। द बहादुरपुरा ब्रांच ट्रूली शोज़ द लाइवली स्ट्रीट फूड कल्चर ऑफ हैदराबाद, स्पेशली ड्यूरिंग Ramazan nights.